ایک بڑا مسئلہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج اس سیگمنٹ میں. کامن مسئلہ ہے بہت مسئلے لے کر آتی ہیں آپ. بہت مسئلہ ہے آپ کا, مجھے یہ بتائیں. اب ظاہر اب عمر ہو رہی ہے تو ہونا شروع ہو چکا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ کہہ رہی ہیں کہ عمر ہو رہی ہے. میں نے تو ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی عمر نہیں بھی ہوتی, اب ان کی بھی گرے ہیئر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لائن سے اس کا تعلق نہیں رہا کہ عمر ہو گئی ہے. اوکے. اور دوسرا مطلب اس سے تو نہیں ہے کہ میں نے دھوپ میں جا کے اپنے بال سفید کروائے, یہ والا مسئلہ ہوتا ہے نا. اب یہ جو مسئلہ ہے نا بالوں کے سفید ہونے کا اور پھر ہیئر فال بھی, بالوں کے گرنے کا, یہ بڑا عام ہو چکا ہے. اب تحقیق یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 25 سے 30% افراد ایسے ہیں 30 سال کی کم عمر جن کی ہوتی ہے اور پھر ان کے بال جو ہیں وہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں یا سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا نمبر ہے 30 سال سے کم عمر لوگوں کے لیے. ماہرین اس کی جو بڑی وجہ بتا رہے ہیں وہ جینیاتی عوامل ہیں. ذہنی دباؤ ہے, یعنی سٹریس جس کو ہم کہتے ہیں, نیند کی کمی ہے, غذائیت کی کمی, وہی جو آپ کا پورا لائف سٹائل ہے, یہ اس کی. اچھا, کیا کیا کمی ہو سکتی ہے آپ کے اندر؟ وائٹامن B12 کی کمی ہو سکتی ہے, آئرن کی کمی ہو سکتی ہے, زنک کی کمی شامل ہو سکتی ہے. لیکن ہم یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیا کر رہے ہیں ہم جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ کمیاں ہو رہی ہیں, یا پھر 30 سال سے کم, یا کچھ میں نے بچے بھی ایسے دیکھے ہیں جن کے بال جو ہے نا وہ بالکل سفید ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا صرف سٹریس ریزن ہے یا اس کے علاوہ بھی ریزنز ہو سکتی ہیں؟ یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن صرف ارلی گریئنگ آف ہیئر کی بات کریں گے, ہیئر لاس کی بھی بات کریں گے کہ وہ اتنا زیادہ اسپیشلی آج کل کے موسم کے اندر کیوں ہو رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عشرت ابوذر صاحبہ, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں بیٹا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ویسے ہم نے گرے ہیئرز کی بات کرنی ہے اور آپ کا دیکھ کے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے اسٹائل کے لیے رکھے ہوئے, ایسے ہی ہے؟ جی میں نے گرے ہیئر ہے, میرے گرے ہیئرز ہیں, میرے گرے ہیئرز ہیں. I'm a daddy, I'm a 60 years old. اچھا, یہ بتانا پڑا آپ کو. بالکل you doesn't look like دادی. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا مینٹین کیا ہے. سب سے پہلے تو کیا ریزنز ہیں ارلی گرے ہیئر کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیا ریزنز ہیں؟ اس میں عائشہ ارلی گرے ہیئرز اگر ہم کہیں کہ ایک کوئی ریزن ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ عام لوگوں کو بتانے کے لیے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ریزن ہے اور یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس خوبصورتی سے اتنے پیار سے انسان کو بنایا تو کوئی ایک چیز اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتی. تو وہ طریقے بھی بتائے کہ جی آپ نے اپنے آپ کو, انسان نے اپنے آپ کو رکھنا کیسے ہے. اگر وہ فٹ رہے گا مینٹلی, فزیکلی, اسپریچولی فٹ تو کیسے رہے گا, اور اگر وہ فٹ رہے گا ان تینوں چیزوں میں تو اس کو نقصانات نہیں ہوں گے. یہی ہے نا ہمارے سارے مذاہب میں کہ آپ نے, اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مخلوق کو جو بنایا بہت پیار سے بنایا. سو کہیں ہم غلطیاں کرتے ہیں, کہیں غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے, یا نیگلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ریزلٹس آتے ہیں. اچھا, ویسے ہم پہلے کہتے تھے کہ بڑھاپے میں جا کے گرے ہیئر آتے ہیں, تو وہ ایک نیچرل چیز ہے کہ اگر آپ کیونکہ میں بھی بڑھاپے میں گرے ہیئر آتے ہیں. ہم تو آپ کو بڑھاپا کہہ ہی نہیں رہے, ہمیں تو آپ کہیں سے بھی بڑھاپے میں نہیں لگ رہی. میں ایک جس طرح ہم پہلے کہتے تھے کہ بھئی بوڑھا ہوگا تو سفید بال ہو جائیں گے, یہ فینومنا اب چینج ہو گئے, یہ چیزیں اب چینج ہو گئی ہیں, اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ایگزیکٹلی اب جو ہے مطلب 20s and 25 کی ایج میں بچیاں آ رہے ہیں میرے پاس جن کے ہیئر بھی وائٹ ہو رہے ہیں, ہیئر لاس بھی ہو رہے ہیں. سو وہ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے کہ یار ہم نے جب اپنا بچپن گزارا تو ایسا نہیں تھا. سو اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ اولڈ ایج میں ہم کہتے ہیں بوڑھا ہوتا ہے تو کیوں بال سفید ہو جاتے ہیں, بیکاز اولڈ ایج میں ساری باڈی سلو ہو جاتی ہے. تو نیچرل فینومینا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ سلو ہو رہی ہے, آپ کے سیل ویک ہو رہے ہیں, کولیجن لوز کر رہے ہیں آپ. ناٹ اونلی کولیجن, دا بون, دا مسل, اس میں پریشانی والی بات نہیں, وہ نیچرل ایک میکینزم ہے. ٹھیک ہے, اور پتہ ہے سب انسان کو کہ یہ اب تیز بھاگ بھی نہیں سکتا, چل بھی نہیں سکتا, آہستہ سا چل رہا ہے, تو اس کے سارے سیل سلو ہو گئے. It's going towards the end. Now young بچہ یا بچی جو 20 سال کا 25 سال کا, اس کی تو ایکٹیویٹی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے بال تو وہ پھر اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ معاشرے کی بھی ہیں. سو اگر میں اس کو آپ کو آسانی کے لیے بتاؤں کہ جی اگر بال کسی کے وائٹ یا گر رہے ہیں تو سوچیں کہ جی سب سے پہلے دیکھیں اس کی فیملی کہ ہیریڈیٹری میں, جینیٹکس میں, ٹھیک ہے, ان کے اگر ہیں مدر کی طرف سے یا فادر کی طرف سے, سو مور چانسز کہ اس بچے یا بچی میں ہوں گے, ارلی ہوں گے. پھر اس کے پیرنٹس کی کیا ہسٹری تھی وہ لینی پڑتی ہے. سیکنڈ آپ آ جائیں کہ اس بچہ یا بچی کس انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے. ٹھیک ہے, کس انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے, کیا آل دا ٹائم, ایک تو جیسے آپ دیکھیں گاؤں گوٹھوں میں تھوڑے سے ریڈش براؤن ہوتے ہیں بچوں کے بال, پیلے پیلے سے ہو رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے ہم ڈائی کرواتے ہیں, اسٹریک کراتے ہیں, وہ چھوٹے بچوں کو اسٹریک والے ہوتے ہیں دھوپ سے. سو اچھا, باقی دھوپ میں ویسے رہنے سے ہو جاتے ہیں وائٹ یا کلر پگمنٹ اس کا لائٹ ہو جاتا ہے.
बहुत ज्यादा लाइट्स में रहने में कलर पिगमेंट खत्म हो जाता है। ये जो सेइंग है कि मैंने अपने बाल धूप में रह के सफेद नहीं किए, ये आपने जुमला बोला था तो मैं हंस रही थी कि मैं बताऊंगी। ओके, सो वो है कि किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। अब एनवायरनमेंट में सिर्फ धूप नहीं है, एनवायरनमेंट में आपके इर्द गिर्द जो आप सांस ले रहे हैं, किस किस्म का पोल्यूशन क्या है, जो आप खा रहे हैं उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या केमिकल्स हैं, जो पी रहे हैं पानी या जो ड्रिंक्स वगैरह उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, जहां आप रह रहे हैं आप कितने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में आपको एयर मिलती है प्योर, जो लॉन में सांस इस तरह का आता है कि कंटिन्यूस आप मेंटल हेल्थ भी बड़ी बंद कमरों में हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ का ताल्लुक अनम उससे है कि जब आप अंधेरे में बंद जगह पे रहते हैं, कन्फाइंड जगह पे, तो आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो चेंज होना शुरू होते हैं और डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू होता है। अच्छा, कलर क्यों चेंज होता है? अगर हम डिटीरियोरेशन की बात करें तो वो बाल का खराब होना या टूटना समझ में आता है, कलर का जाने इसका क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, किसी भी चीज़ का कलर, बालों का, आँखों का कलर, स्किन का कलर, ओके, ये किसी चीज़ से बनता है ना बेटा। तो ये स्टेम सेल, आपने सुना होगा स्टेम सेल, तो हमारे बालों की जो जड़ होती है उसके नीचे एक स्टेम सेल होता है, हेयर फॉलिकल का, जड़ का एक स्टेम सेल है, स्किन का एक स्टेम सेल है, हड्डी का स्टेम सेल है, हर जिस्म के हिस्से का एक स्टेम, वो स्टेम सेल उसके अंदर होता है। जो जो चीजें उस स्टेम सेल को डैमेज करेंगी, जो जो चीजें इसको खराब करेंगी, वीक करेंगी, वो सारी चीजें उसके जो पिगमेंट बना रहा है हमारा ब्लैक, वो नहीं बनाएगा। तो उसमें अगेन वो मैं सारी चीजें, आप पूछ रहे हैं कलर क्यों खराब होता है, बिकॉज कलर अगर ब्लैक, जेड ब्लैक और शाइनी है, इट मीन्स कि उसका जो फॉलिकल के अंदर स्टेम सेल है हेल्दी है, उसका डीएनए हेल्दी है, उसका सेल बिल्कुल जबरदस्त है। जब सेल के अंदर प्रॉब्लम आ हमारे साथ लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, आबिद खान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम आबिद, कोई सवाल करना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? वालेकुम सलाम मैडम, मेरा सवाल है सर मैडम से। एक तो सर मैडम, मेरा जो जल्द होता है ये बहुत ज्यादा भी सर्दी जैसी शुरू हो रही है, तो जल्द मेरा खुश्क हो रहा है। ठीक है। दूसरा मैडम, एक मेरे बाल गिर रहे हैं, और तीसरा और आखिरी सवाल ये मैडम, एक मेरे चेहरे पे स्याही आ गई है। सर मैंने इस तरह की क्रीम वगैरह इस्तेमाल की थी तो अभी स्याही आ गई है, तो इसके बारे में मैडम थोड़ा दो तो मुझे समझ आ गई, तीसरा मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आई थिंक वो स्किन से शुक्रिया, जरा जान लेते हैं। एक तो मुझे समझ आया कि इनको खुश्की बहुत है बालों में, बाल गिर रहे हैं, और समझ अब ये इन दो का जवाब, इन दो का ही बता दें। ये मेरे ख्याल से सबका ही मसला, सबकी हेल्प हो जाएगी। देखें, खुश्की का मतलब है बॉडी ड्राई हो रही है, ठीक है, ड्राई होके उसकी जब बॉडी ड्राई या इम्बैलेंस हो रही है, अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रही, तो एक पैरासाइट या एक फंगस आपकी बॉडी में अटैक कर रही है, ठीक है। तो जब एक बीमारी अटैक कर रही है, एक फंगस लगा हुआ है और आपकी बॉडी जो है वो ड्राई हो रही है, तो बाल तो उससे भी गिरेंगे। तो पहली कॉज तो नजर आ रही है कि डैंड्रफ है, ठीक है, और जो कि एक पैरासाइट होता है, और वो आपकी स्किन को, आपके स्कैल्प को ब्रीथ ही नहीं करने दे रहा, ठीक है, एक जरासीम लगा हुआ है। तो डैंड्रफ जो इनको है, पहले तो एंटी डैंड्रफ जो है वो शैम्पूज के अलावा एंटी डैंड्रफ डाइट्स भी होती हैं बेटा। ये जो जितना भी योगर्ट है ये एंटी डैंड्रफ होता है, एप्पल सिडर विनेगर है ये एंटी डैंड्रफ होता है, लेमन है, इसको कंज्यूम करना या यस, इनको कंज्यूम फर्स्ट तो कंज्यूम पहले तो कंज्यूम करें ना, कि सेल के अंदर तो जाए, ऊपर लगा लेंगे तो अंदर कंज्यूम। इनको डाइट में, अपनी डाइट में जितनी ज्यादा हो सके ये चीजें, फ्रूट्स एंड वेजीज, इनको कि ये एंटीऑक्सीडेंट चीजें होती हैं, इनके अंदर एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल, तो खाने में ये लगा भी सकते हैं। और एंटी डैंड्रफ ऐसा शैम्पू जो कि हार्मफुल ना हो, केमिकल वाला ना हो, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हो, तो वो आप केमिकल्स की बात करिए। लोग जिनके ज़्यादा ग्रे हेयर हो जाते हैं वो डाई की तरफ चले जाते हैं कि भाई डाई करा लेते हैं तो कुछ अरसा निकल जाएगा। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं, डाई कराने से ज़्यादा हो जाते हैं ग्रे हेयर। ऐसा है? ऐसा है, बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप एक कपड़े पर डाल दें, उसका रंग उतर जाएगा। इट्स पॉइजनस, इट्स अ टॉक्सिन फॉर योर स्किन, योर हेयर। तो आप जब डाई करते हैं तो यू नो योर ओरिजिनल कलर का पिगमेंट है जो अल्लाह ने दिया, वो किसी किसी जगह तो नेचुरल खत्म हो गया, किसी किसी जगह हमारी अपनी हरकतों से, बिकॉज हमने शैम्पू में इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं। आप नेम द शैम्पू, आप देखें उनके सब के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो इनके लिए हार्मफुल हैं। डाई जितने कलर के आ रहे हैं वो सब जाते हैं, इवन बालों को वाइट करने के अलावा स्किन की पिगमेंटेशन
शुरू कर देते हैं, ठीक है, एज़मा कर देते हैं डाई कलर, किसी भी किस्म का डाई, किसी किस्म का भी, किसी किस्म का। कुछ लोग तो मेहंदी भी लगा रहे होते हैं ना, वो दैट इज मेहंदी, इफ इट इज ओरिजिनल तो मेहंदी तो बड़े सदियों से लगा रहे हैं, हमारी अम्मियां लगाती थी। तो फिर करना क्या है डॉक्टर साहिबा? अगर देखें डाई नहीं कर सकते, आपके बाल हो चुके हैं व्हाइट, तो सिर्फ प्रिवेंशन ही इसका एक हल है? यस, एक तो प्रिवेंशन है, नंबर 1 कि प्रिवेंशन कीजिए। अब अगर प्रिवेंशन नहीं हो सकी, आपका हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आएगा। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, इनकी फोटोग्राफ्स भी हैं, सारा आते हैं बहुत दूर दूर से, जिनके बाल वाइट हो गए, वो वापस आए हैं यंग एज में, ठीक है, और जिनके बाल बिल्कुल बॉल्ड हो गए, बिल्कुल बाल खत्म हो गए, उनके नए बाल दोबारा आए। ओके, वी हैव लेफ्ट विद अ वेरी लिटिल टाइम। जल्दी से अगर आप डाइट के बारे में बता दें कि क्या क्या उनको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, जिनके बाल बहुत ज्यादा ग्रे हो रहे हैं या गिर रहे हैं, जल्दी से उसके बारे में बता दीजिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स एंड सीड्स, ठीक है, ये शामिल करें, और जंक और बाजार की और पैक्ड फूड और दूर भागें उससे, प्लीज। एंड व्हाट अबाउट प्रोटीन? वो कहते हैं प्रोटीन एंड फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोटीन, आप ये क्यों समझते हैं कि प्रोटीन सिर्फ आपको गोश्त में मिलती है? आपको दालों में प्रोटीन मिलती है, ब्रोकली में प्रोटीन मिलती है, बिल्कुल वैसा ही प्रोटीन है जैसा हमें मीट से मिले, बेहतर प्रोटीन है, बेहतर है, बिकॉज उसमें तो हार्मोन और इंजेक्शन लगे होते हैं, ये तो नेचुरल प्रोटीन है। मशरूम्स में प्रोटीन है, इतनी प्रोटीन है, बीन्स में प्रोटीन है, ग्रीन्स इसमें, पी में प्रोटीन। वी हैव अ लाइव कॉलर शगुफ्ता आजाद कश्मीर से हमारे साथ। आजाद कश्मीर वाली शगुफ्ता, बताइएगा आपका क्या सवाल है? वालेकुम। जी बताएं। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि मेरी एक बेटी 9th में, एक 10th में है ना, तो उन दोनों के बाल जो है सफेद हो गए, जबकि मेरे अभी तक नहीं हुए हैं, काफी अर्सा हो गया है, मेरी तकरीबन 45 ईयर एज है। कुछ पूछना चाहेंगे? आपके नहीं हुए तो वो कह रही है उनकी बहनें हैं 2 छोटी, उनके बाल सफेद हो गए, वो 45 बेटियां, बेटियां। हाँ एग्जैक्टली, मैंने जो भी बात की है उनकी, इसलिए कि उनकी, अगर मैं आप उनसे पूछूं तो उनकी डाइट देखें कि वो क्या डाइट खाती हैं, आप क्या खाती थी, वो किस लाइफस्टाइल में रह रही हैं और आप कैसे रहती थी, इन दोनों को कंपेयर करें और कोशिश कीजिए जिस लाइफस्टाइल और जिस डाइट स्टाइल को आपने बचपन में किया है उसको वही देने की कोशिश करें, ठीक है, और बाकी चीजों से अच्छा, जेनेटिक्स में अगर हो तो फिर तो सारे बच्चों में तो ट्रांसफर नहीं होती है की चीज। अगर देखें माँ के बाल सफेद हैं या फिर गिर ज्यादा रहे तो कितने चांसेस है कि सारे बच्चों में इसी तरह होगा? देखिए, गिरने का ताल्लुक तो जेनेटिक्स से नहीं है, ग्रे हेयर्स है। अब ग्रे हेयर्स में कुछ बड़ी बड़ी डिजीजेस हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे हो रहे हैं वो माँ बाप की वजह से हो रहे हैं, उनको इल्जाम देने की जरूरत नहीं है, अब उनकी अपनी हरकतों की वजह से हो रहे हैं। जो ग्रे हो रहे होते हैं उसमें जेनेटिक्स में बहुत बड़ी बड़ी डिजीज हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, उसमें हो जाता है, एल्बिनो आपने देखा व्हाइट पूरे हो जाते हैं, उनमें हो जाता है, उनकी जीन्स में, डीएनए में पिगमेंट, जहाँ की जीन्स पिगमेंट बनाती है वो अगर डेफिशिएंट हो तो उसमें हो जाता है। ये बड़ी बड़ी डिजीजेस हैं। ये जो आम हम कहते हैं हमारे अम्मी अब्बू की तरफ फैमिली से आ रहा है ना, फैमिली ने किसी ने चेक किया कि उनके पेरेंट्स में क्या डेफिशिएंसी थी, क्यों हो रहा है, और ना इन्होंने चेक किया। तो जब आपने चेक ही नहीं किया तो इल्जाम मत दे। अब जो माहौल है इसमें बहुत ज्यादा, हमारे की टेक अवेज जो है ना वो इस सेगमेंट से वो ये बनते हैं कि सिर्फ एक रीजन नहीं हो सकती है, चंद रीजन या मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एंड ओवर द इयर्स जो क्लाइमेट चेंज, जो पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, खाने पीने के अंदर हमें कुछ प्योर नहीं मिल रहा, लाइफस्टाइल का हमारा क्या हाल हो चुका है, ये सब कुछ इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। और इसके ट्रीटमेंट्स जो हैं, इसके ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं, मैं छोटे-छोटे बता देती हूं आपको। इसके ट्रीटमेंट, वी आर आउट ऑफ टाइम, 30 सेकंड्स में बता दे जल्दी से। इट्स PRP, रीजनरेरा एक्टिवा, योर ओन स्टेम सेल थेरेपी एंड योर डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कंप्लीट करना, बेसिक ये है, बेसिक ट्रीटमेंट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर इशरत हमारे साथ मौजूद थी।